Assalamualaikum. Hope you're all fine and safe at home. In this video, we are going to discuss two main topics. Number 1, dependent probability, and number 2, independent probability, in which we will be describing its definition, sample, and problem with solution. Let's begin with our first topic, that is dependent probability. Definition: those events in which the outcome of one event affects the outcome of the second event, that event is known as dependent probability. It means कि हर next output उसके पीछे वाले output से link या connect होता है and first वाले का result उसके next वाले पर affect होता है. Let's take an example. एक बच्चे के पास दो balls हैं different colors. लेट से एक ग्रीन है और एक पिंक है एंड उसने बैग से एक बॉल पिक की रैंडमली. सो जब वो सेकंड बॉल पिक करेगा तो ये फर्स्ट वाले पे डिपेंड करेगा. अगर फर्स्ट बॉल उसने ग्रीन पिक की है तो डेफिनेटली सेकंड बॉल पिंक होगी, या फिर अगर फर्स्ट वाली पिंक पिक की है तो सेकंड वाली ग्रीन होगी. दैट मीन्स कि सेकंड पिक पूरा का पूरा फर्स्ट पिक पर डिपेंड करेगा. Now let's take some problems to understand dependent probability more easily. Suppose we have 6 blue marbles and 5 red marbles in our bag. We pull out one marble which may be blue or red. Now there are 10 marbles left in the bag. What is the probability that the second marble will be red? Let's begin with our first step, that is data collection. Red marbles is equals to 5. Blue marbles is equals to 6. After one marble is pulled out, remaining marbles left are 10. Now we have to find out the probability of that the second marble will be red. यहाँ पर दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं. नंबर 1, अगर फर्स्ट पिक पर मार्बल रेड कलर का है so total red marble left will be 4. So the probability that the second marble is red will be 4 upon 10 या 2 upon 5. सेकेंड कंडीशन इज दैट कि अगर फर्स्ट पिक पर मार्बल ब्लू कलर का है सो टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5 हैं एंड सेकेंड पिक पर मार्बल रेड कलर का होगा, द प्रोबेबिलिटी विल बी 5 अपॉन 10 या वी कैन से 1 अपॉन 2. नाउ कमिंग ओवर टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी. डेफिनेशन: independent probability is defined as the events which does not depend on each other. In other words, the occurrence of one event does not depend on the occurrence of the second event. The probability of occurring two events are independent of each other. That means कि दोनों आउटपुट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते एंड ना ही किसी भी आउटपुट के चेंज होने पर दूसरे पर कोई अफेक्ट पड़ता है. Let's take an example of tossing a coin. एक कॉइन टॉस करने पर या तो आउटपुट हेड्स आता है या फिर टेल्स. बट अगर हम कॉइन को इनडेफिनिट टाइम्स भी टॉस कर लें सो किसी भी आउटपुट का उसके नेक्स्ट या प्रीवियस आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, रोलिंग अ डाइस, जिसमें आउटपुट 1 से लेकर 6 तक होते हैं एंड हम डाइस को जितनी भी दफ़ा रोल कर लें हर बार अलग रिजल्ट आता है, बट कोई भी रिजल्ट उसके नेक्स्ट या प्रीवियस रिजल्ट पर असरअंदाज नहीं होता. Let's take a problem so that we can understand independent probability more easily. Example: 2 sets of cards with letters on each card are placed into separate bags. Sarah randomly picked one card from each bag. Find the probability that A. She picked the letters J and R. B. Both letters are L. And C. Both letters are vowels. Let's begin with our first step, that is data collection. फर्स्ट बैग में हमारे पास 5 लेटर कार्ड्स हैं, नेमली I, L, J, A and U. एंड सेकेंड बैग में हमारे पास 6 लेटर कार्ड्स हैं, नेमली L, R, H, E, C and A. Now to find out the probability that big letters are J and R, so हम 1 upon 5 लेंगे. फर्स्ट बैग में टोटल 5 कार्ड्स हैं एंड J की अक्रेंस एक दफ़ा है, सो J की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम 1 डिवाइड बाय 5 करेंगे.
एंड इसी तरह सेकेंड बैग में टोटल 6 कार्ड्स हैं एंड आर की अक्रेंस एक दफ़ा है। सो आर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए 1 डिवाइड बाय 5 करेंगे। ना क्वेश्चन के मुताबिक हमें इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली हम 1/5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/6 से। सो आंसर विल बी 1/30। दिस इज द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर्स J and R. Part B is that to find the probability that both the letters are L. So we write 1/5 the probability of L from first bag means total 5 cards हैं। फर्स्ट बैग में लेटर L की अक्रेंस एक दफ़ा है, तो लेटर L की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम 1 को 5 से डिवाइड कराएंगे। एंड इसी तरह सेकेंड बैग में टोटल 6 कार्ड्स हैं एंड लेटर L की अक्रेंस एक दफ़ा है, तो लेटर L की प्रोबेबिलिटी सेकेंड बैग में फाइंड आउट करने के लिए हम 1 को 6 से डिवाइड कराएंगे। नाउ अब इन दोनों की क्वेश्चन के मुताबिक कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम 1/5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/6 से। सो फाइनल आंसर विल बी 1 डिवाइड बाय 30, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द लेटर्स ऑफ बीइंग L. Part C is to find out the probability if both the letters are vowels. So from the first bag, the probability of vowels will be 3/5 because first bag में total cards 5 हैं and vowel cards 3 हैं. So इसीलिए हम probability find out करने के लिए 3 को 5 से divide करेंगे. In second bag में vowels की probability find out करने के लिए हम 2/6 करेंगे because total cards 6 हैं एंड वॉवल कार्ड्स 2 हैं, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम 2 को 6 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ लेटर्स आर वॉवल्स मिल जाए, जो कि है 1/5। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक आवर वीडियो एंड फाइंड इट यूजफुल। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉर एनी क्यूरीज do let us know in the comment section below. We will be back with more informative topics. Till then, take care and Allah Hafiz.